Our subject is aesthetic, ethics and aesthetics of calligraphy. So might be if you want to ask any question when we are going to discuss about this, उसके बारे में आपको कुछ राय अगर होगी तो वो भी बता दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं सबसे बड़े सीनियर पर्सन हमारे नारायण भट्टाचार्य से पूछता हूँ कि यू टेल मी द व्हाट इज योर व्यू ऑन ethics and aesthetics of calligraphy, because almost like he's worked more than 40 years. So give the big round of applause. The first time I heard the word calligraphy when I was in school. I remember that the word is in periodical in Malayalam. I learned from at that time I don't know what is calligraphy. From my brother told me what is calligraphy and about that. But in 7th standard, I decided to write neatly with neat letters. That is the starting of my calligraphy. And after the BA degree, I joined College of Fine Arts. At that time, I worked for a periodical in Malayalam. That is my main job is writing titles for the stories, poems. At that time, I do the letters in different styles. That is, at that time, I realized what is the calligraphy is aesthetics. Then in 2014, I have conducted an exhibition with these titles. I have wrote more than 45,000 titles. From that titles selected nearly 100 titles, conducted an exhibition. The response from the audience is very good. And in 2016, I participated in a camp, calligraphy camp. At that time, I met Achyut Pala and some other calligraphers. From that day onwards, I realized that is the title, writing title is not the calligraphy. And from them, I knew the composition and color that I realized, and then the career is changed. That is now you can see this is the. Sometime he can't explain, but as per my knowledge, he did a lot of work. And he is the first person in Malayalam. He introduced the calligraphy in Malayalam. He's a very senior. And, the work wise, daily 3 AM सुबह उठ जाता है वो, काम शुरू होता है, 5 बजे पहला पोस्ट ऑल ओवर द इंडिया जाता है. And every day is a new post. So every day he is searching what is beauty, what is aesthetic, what is a composition, what is a texture. So really he is doing a wonderful job. So thank you, Naren. I like to ask Raju, because he is a different iconic calligraphy he introduced. Normally we are writing. Take the text, take the letters, make the composition.
But Raju is doing some figure he can convert in calligraphy. So I would like to ask the Raju. Raju, please explain your process. Good evening. I started writing and learning the Pothi script from my teacher, Mr. S.V. Pense. And then Pothi writing is requires two elements. One is the written text and the other is the pictorial element. I wanted the pictorial element to be done in the same tool as the calligraphic tool so that they look same instead of two different elements. Over a period of time, I started working on the pictorial element and the writing part slowly faded away and I continued working with the pictorial element. Now this pictorial element is difficult to do with a broader nib, so it became more simplistic, more graphic, if you say, and then with bare minimum strokes, I could convert a complex image into a simplified form. So that is my area of work. Next to this, I would like to share a few things about the aesthetics of what we do. Aesthetics is something which is very unique to every individual, whoever we are working. And it has a few things which are very important in terms of the paper you use, the inks you use, the way you write, or the way you draw. And it also makes it easier to work on a good quality paper so that in the future somebody does not have a problem of restoring it to its original character. So that is one area which we all have to be very careful with. We can't just use an ordinary paper and then hope that it will survive for a longer period of time. The second thing I would like to share here is we need to share the grammar of the scripts so that there is some resemblance to the original script and then the uniqueness of the same script being written in different parts of the country or the world. Say, me being from Andhra Pradesh, and if I'm writing the Telugu script and I'm learning a new script, somewhere the Telugu character comes into the Devanagari script in terms of the stroke or something, and so that at a later period of time it can be identified that so-and-so person did so-and-so work. So that's very important. A similar thing which happens with most of our scripts. Most of the time what we do is we are learning from a master and we are trying to just do exactly what the master is teaching us. But then we are not specific to from which area we belong to. Like for example, you have a decoration with the calligraphy. Somebody in the past did that, so we are doing the same thing, but we are not keeping it to the uniqueness of the place from where we are. The flora and fauna is so different from different places. So when we start using those elements, then it becomes geographical specific that so-and-so person has done from so-and-so area. So that makes it so much more beautiful and different in the same script. So thank you. Any question, if you want to ask Raju sir? See, basically it's an open session because we are discussing. This is something which is very interesting because we learn from a master, we see somebody's good work, and then we try to imitate that work. Please don't do that work. Because what happens is, you're doing a bad job of it or a better job of it. Both ways it is wrong. It needs to be very specific to the individual of, like how the person actually does the work. Say, for example, I do some drawing. I find that somebody copies that work, but it is plagiarism basically because you cannot have somebody else's way of writing, you copy it and say that this is mine. It has to be given that person's credit in terms of so-and-so master or so-and-so calligrapher has done this particular work. That's very important. And then you can say that I learned from that person, or you could say that it has been my inspiration, but then don't exactly copy the way it has been done. So there's something which is rampant
in the world these days where everyone is trying to copy somebody's work. So then we're not creating anything new. Only few people are creating something new, and the rest of them are just copying the whole styles. So we need to be independent in terms of thinking and the way we write, or the way we draw, or create the compositions of our calligraphic practices. Thank you. I'd like to invite Kumar. I think some people are working with this only discipline. Some people are working with the design. Some people are working with the emotions. And I saw the one demonstration and thoughtful process of calligraphy by Kumarji. So I request to you, please. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीबॉडी। सबसे पहले ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ये एजाज़ की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके साथ मैं बैठी हुई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरा अपना स्टाइल है, मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड ये बताना चाहती हूँ। ज़्यादातर लोग मेरे काम को देख के समझते हैं कि शायद मैंने कुछ पहले और वो काम वो नहीं किया है। ये बात सही है कि मैं फ्रीडम को मुझे ज़्यादा पसंद है, फ्री होके काम करना, लेकिन मेरी हकीकत ये है कि जो मेरे जिनसे मैं इंस्पायर हुई और जिनसे मैंने सीखा, वो ख़ुद मास्टर कैलीग्राफर थे और वो सूफ़ी थे। तो जैसे आप लोग सब, मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा लगता होगा कि जो जब आप काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम या कोई भी आर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का मेडिटेशन है। जब आप पूरी तरह उसमें खो जाएं और आप भूल जाएं कि आपका जो कलम है वो चाय में जा रहा है या इंक में जा रहा है, ये वाली बातें होती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है कैलीग्राफी का या कोई भी आर्ट का, और वो मैंने अपने सामने होते देखा। तो वो ऐसा था कि जब उनको देखना भी एक किस्म का मेडिटेशन, जब आप पूरी तरह उसमें खो जाएं, लीन हो जाएं। तो वो ट्रेडिशनल ही काम करते थे, वो तुगरे बनाते थे और कुरान शरीफ की आयतें लिखते थे, और एक किस्म का जैसे तावीज़ हम हाथ पे अपनी बॉडी पे पहनते हैं, वो घर का जैसे तावीज़ समझ लीजिए, वो उस तरह का वो बनाते थे। उनको देखकर ही मैं इंस्पायर हुई। उसके अलावा और बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं मेरी ज़िंदगी में। उसमें एक इराक़ के जो हसन मसूदी साहब हैं, उनको देखकर भी मुझे मतलब उनका काम जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा नहीं कि वो स्क्रिप्ट है, वो तहरीर बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे खूबसूरत डिज़ाइन है, चाहे मुझे आपको समझ आए या नहीं आए, लेकिन आप उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, उसकी तरफ आपका दिल जा रहा है। तो ये जब मैं छोटी थी उस वक्त की मैं बात बता रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे वो किताब दी थी, और तो उसको देख के मैंने नक़ल करने की भी कोशिश करी, और बहुत अच्छी नहीं, मेरी बहन ने बेहतर काम किया मुझसे। और तो वहाँ से ये बात शुरू हुई। और हसन मसूदी साहब के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे यहाँ पे माशाल्लाह इतने एक से एक लोग यहाँ मौजूद हैं, और लेकिन जो मतलब हसन मसूदी साहब की ख़ास बात ये है कि बहुत लोग अच्छा लिखते हैं, परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये परफेक्शन की बात से भी ज़्यादा, क्योंकि परफेक्ट तो वही ज़ात है एक। दूसरी बात ये कि जो परफेक्शन के अलावा एक जो है जो आपके दिल को छुए, जो आपके दिल पे इसका कोई असर छोड़े, वो मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कैलीग्राफी का या कोई भी आर्ट का। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप किसी के दिल पे छाप छोड़ें तो वो सबसे ही खूबसूरत बात है, और वो हसन मसूदी साहब में मैं उनके काम में मैं देखती हूँ। ये दो लोग हैं, और इसके अलावा एक और मोरक्को के हैं मोहम्मद एलबाज। उनका भी बहुत मतलब मेरे काम पे मतलब मैं इंस्पायर हुई हूँ उनसे, और उन्होंने ही मुझे ये बताया कि आपको सिर्फ यही नहीं कि जो भी पहले के जितने ख़त लिखे जा चुके हैं, मैं सिर्फ वही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे सबसे पहले कूफे का आया स्टाइल, तो अगर मतलब वही रहता, अगर मतलब इंसान में ये सलाहियत ना होती कि आप और तरह तरह के और ख़त निकालें या लिखें और उसको इस्टेब्लिश करें जैसे आज हैं, तो अगर वो सब ना होते तो वो सिर्फ एक कूफे की रह जाता जो आपको सिर्फ वही करना है ना। तो यही सबसे खूबसूरती की बात है इंसानियत की। इंसान में जो क्रिएटिविटी है, उसमें जो वो अलग अलग तरह से लिखना चाहता है, सलाहियत है उसमें, ये एक बहुत ज़रूरी बात है।
मैं समझती हूँ कि ये हम सबको इस बात पे गौर करना चाहिए और इस बात पे ज़रूर, चाहे कितना भी अलग अलग लेवल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब बहुत ही हाईएस्ट लेवल पहुंच जाते हैं, सब नहीं पहुंचते, लेकिन सब में ये एक जोश होता है, एक एंथुजियाज़म है कि आपको ये इस तरह से काम करना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैं मानती हूँ बात। और जहाँ तक मेरा अपना सोचना है, जैसे ये जो मतलब कैलीग्राफी का क्या मतलब है, आर्ट का क्या मतलब है, रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट जब आप बार बार एक ही चीज़ को लिखते जाते हैं और आप वो फिर आप डिसर्न आप देख सकते हैं, वो फ़र्क देख सकते हैं कि जब मैंने पहली बार लिखा और 10वीं बार लिखा, 50वीं बार लिखा, तो उसमें कोई तब्दीली आई है। तो वो एक रिफाइनमेंट हुआ आपके अंदर भी, और आज आप पेपर पे जो देख रहे हैं वो भी। तो ये भी एक बहुत ही, ये एक प्रोसेस है जो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं ये, और कोई दूसरा जो करेगा वो उसको फील होगा। तो ये एक, क्योंकि बहुत इंटरनल सी बात है, बहुत मतलब मखसूस इसको समझ लें। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये एक चीज़ है जो इस सारे आर्ट्स को बहुत खूबसूरत बनाती है और बहुत यूनिक, इंडिविजुअलिस्टिक बनाती है, क्योंकि सबके पास वही स्क्रिप्ट है, सब वही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक से दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि आपकी सलाहियत अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, और वो और जितना उसमें वक्त दे रहे हैं वो भी अपनी जगह ज़रूरी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं जब आप अपना कोई काम करते हैं, दिखाते हैं, बनाते हैं। तो ये मैं ये सोचती हूँ। मैं कुछ और जो चीज़ें कहना चाहती थी, मेडिटेशन हो गया, और उसके अलावा जो कैलीग्राफी मेरे लिए, जो मैं अब पता नहीं आप उसको कैसे देखेंगे, आप प्लीज़ मुझे उस पर मैं इस्लाह चाहूँगी उस पर भी, कि जो रूह है कैलीग्राफी की, वो उसके स्ट्रोकिंग में है। तो स्ट्रोकिंग मतलब कैसे शुरू हुआ स्ट्रोक, कैसे ख़त्म हुआ, बीच में क्या हुआ, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे आपने, आपकी सेंसिबिलिटी क्या है, सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है आपकी, आपको दिख रहा है कि नहीं, कि जैसे ये शुरू कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हर इस ख़त में इस बात का ध्यान रखा जाता है और इस तरह से किया जाता है। जो मैं करती हूँ वो थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं इसको एक पिक्टोरल फॉर्म देखना चाहती हूँ। जितने भी हुरूफ हैं, मैं हिंदी और उर्दू की बात कर रही हूँ, तो इतने खूबसूरत हैं अपने आप में, जबकि एक तरह से देखा जाए तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, है ना। उनको हमने नाम दे दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हमने उनको नाम दिया अलिफ बे का खा गा वट। तो जो हम बोल रहे हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये दो लेवल पे काम होता है, जो एक फिज़िकल है और जो एक रूहानी तौर पर है। दोनों एक साथ जब काम चल रहा होता है तभी आप आर्ट कुछ कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। हो सकता है आप लोगों की अलग राय हो, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, राइट। और उसके अलावा ये मतलब आप जब हर चीज़ का एक फ़लसफ़ा होता है, उसके हिसाब से, जैसे कोई लफ्ज़ है, आप कोई ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और उसमें से कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हैं, कुछ चीज़ कम पसंद है, और उसके हिसाब से, जैसे कोई शायर है वो पोइट्री लिखता है, तो उसके हिसाब से आप उसको देखते, मतलब उसको समझता है, क्योंकि एक किस्म का फ़लसफ़ी होता है वो भी। हर आर्टिस्ट भी एक फ़लसफ़ी होता है, वो उस तरह से देखता है। मैं एक जैसे शेर आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो मैंने अटेम्प्ट किया था कैलीग्राफी में करने का, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं वो आज बताऊँगी। तो साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जिधर से हम। तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। और जब मैं बहुत रैंडमली इसको काम करना शुरू किया था, और इसकी इन्वॉल्वमेंट मेरी इस तरह से बढ़ती गई कि जब मैं पिक्टोरल फॉर्म कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारे फोकल पॉइंट थे कि ये माना कि ज़मीन, गुलजार, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बाकायदा उसका मैं कुछ काम कर सकती थी, बना सकती थी। तो ये एक पूरी सीरीज, एक ही जो शेर है उस पर एक पूरी सीरीज़ हो सकती थी कैलीग्राफी की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। और इसी वजह से अगर अल्लाह का कोई नाम मैं लिख रही हूँ, जैसे अल वदूद है, यानी मोस्ट लविंग,
तो वो पिक्टोरल फॉर्म में वो दिखना चाहिए कि हाँ ये बात कही जा रही है। स्ट्रोक को मैं ऐसे लिखने की कोशिश करती हूँ, अब उसमें कितनी कामयाब होती हूँ तो बस यही एक तो एवर गोइंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो कैसे आप शुरू कर रहे हैं, क्या आप बात कहना चाह रहे हैं और उसमें कितनी डेप्थ ला पा रहे हैं, वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो उससे बेहतर होगा। और तो ये वाली सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब भी मैं कोई काम करती हूँ। अगर मैं बुज़ुर्ग लिख रही हूँ तो मेरे जहन में मेरी फ़िलॉसफी कहती है वो एक बड़े दरख्त की तरह है बुज़ुर्ग जो है, तो वही जो हरूफ जो इस लफ्ज़ में हैं उनको मैं लिखने की ऐसे कोशिश करती हूँ कि वो दूर से, क्योंकि ये विजुअल आर्ट है तो दूर से आपको ये दिखे कि हाँ ये एक दरख्त बनाया गया है, पर पास जाने से आप ध्यान से देखें तो हरूफ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी हैं और इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और बस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ बात है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। सो एनी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम को? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट इज विनोद कुमार। आई डोंट नो अबाउट द विनोद कुमार, हम अभी मिल चुके हैं, वो ही नो मी वेरी वेल, बट यंग जनरेशन में काम बहुत अच्छा करता है। और आई वर्क विद आर के जोशी, इज अ लीजेंड कैलिग्राफर ऑफ इंडिया। सो वो उनके साथ जब भी काम करता था तभी पता चलता था कि व्हाट इज़ अ ब्यूटी, व्हाट इज़ अ डिज़ाइन, व्हाट इज़, वो जब भी काम करते थे या हम लोग जब भी काम दिखाते थे तभी सिर्फ आई वॉज ऑब्जर्विंग ओनली इन बॉडी लैंग्वेज, उनसे पता चलता था कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है। ऐसे लोगों के काम करने के बाद काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिल गए थे। आई वर्क विद गुलजार, आई वर्क विद अटल बिहारी वाजपेयी, आई वर्क विद लता मंगेशकर। सो ये जो दे आर नॉट ओनली द सिंगर्स, दे आर नॉट ओनली द राइटर, बट म्यूजियम जैसे लोग हैं वो, और उनके साथ जब भी काम करते हैं ना तभी पता चलता है कि व्हाट इज एस्थेटिक एंड व्हाट इज एथिक्स। इज अ न्यू जनरेशन। Good evening to everyone. This is Vinod Kumar, a Tamil calligrapher. Last 13 years I'm doing. Sitting with them, the experience is my age actually. The 40 years. Okay. Okay. I talk about ethics and aesthetic. Whenever I'm going to start with do something in whatever tool, one thing I will follow. It should be ethics or aesthetic. And also it's a competition for my work only. I'm not, people are accepting this work or not, I'm not thinking about that. I'm just, if I felt love with that text, I will return. In one word in Tamil, I researched about the calligraphy, there is no Tamil calligraphy. I found what is Assam and gave me the one Greek word is a calligraphy. Then only I searched for everything, there's a kalvittu in Vattarthu in Tamil. I went to the Tanjore temple and they saw the Rajaraja Cholan only written in Tamil only. There is the 1,000 years old temple in the Tanjore. Then why we can try to Tamil calligraphy? I searched so many things, I didn't find anything. Then only I found Achyut sir, Narayan sir, Parameshwar sir, so many things I follow. Nicely said by Raju sir, get inspiration but don't copy that. Same what I'm following that. I'm getting inspiration, so many things. I'm trying it in my language, my mother tongue. I should follow the ethics and aesthetic. It should be cuteness and follow the shapes of letters, not break it actually. In Tamil, is a huge problem is 247 letters. I'm very angry about in English because, and also jealous because 26 letters, easily you can write it. Sometimes I think, what will we do in 26 letters in Tamil? I was thinking about it. My aim to be very minimalistic in Tamil, but I'm not able to break that ethics of the letters. It's a very ancient language. It's a fear only I can drive me like this stage today. Every time I'm said no. If I'm using paper, any medium, one thing I will should, you should follow the ethics of the letters. Because you are traveling your culture. It's not a very letter. I'm already sitting with Tamil. I'm talking about my mother tongue. Everyone be same actually. So every time you will write in paper, I fear it. You should be follow the ethics. You should be follow the aesthetic, and also you have to prove yourself. It should be nice as a visual treat of the letters,
because I'm an artist, I'm a designer. That's the main problem for me, myself. Is we good or not? This I can post or not? And do one. I did one last few years back. It's a calligraphy marathon. We'll ask people the name. We'll write it in Tamil. They will accept it or not. I'm literally 12 hours continuously written in the marathon. For 2 times I did it. Then one day I found people are willing to learn other languages also. The perfection is very matter for each and every letter. But we have to show you a little bit of your essence for the letters. What you feel, what you think. That's why I'm trying for last 13 years. That's it. Thank you so much. और बहुत कुछ आगे दौड़ना है आपको, कैलिग्राफी मैराथन. या माय डियर मोहम्मद जुबैर बहुत अच्छी बातें करता है, फिर भी बोलता है कि बात नहीं करने के लिए आती है. हाँ वो लेकिन आज करेंगे वो. या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा मानना ये है कि हम सबको कैलीग्राफी करना चाहिए और औरों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि कैलीग्राफी का ताल्लुक़ जो है डायरेक्ट अल्लाह पाक से है. सबसे पहले अल्लाह पाक ने कलम को पैदा किया. कुरान मजीद में कई जगह नून वल कलम वमा यस्तुरून अल्लामा बिल कलम. और मेरा मानना ये भी है कि जब अल्लाह पाक ने कलम का बार बार ज़िक्र किया तो कलम की अहमियत भी होगी. अल्लाह के नबी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ लेके गए, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक मौके पर आकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी साथ छोड़ दिया सिदरतुल मुंतहा. शायद बोले कि अगर मैंने यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे पर चल जाएंगे. बहरहाल अल्लाह के नबी अर्श पर गए. वहाँ पर अल्लाह के नबी ने सरीर खामा सुना, कलम के चलने की आवाज़ सुनी. गोया कि जब वहाँ पर कलम के चलने की आवाज़ आई तो हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी कीमती बात है ये कि वहाँ पर भी कलम के चलने की आवाज़ आ रही है. तो जब अर्श पर कलम के चलने की आवाज़ आ रही है तो हम दुनिया में कलम क्यों ना चलाएं. मेरा मानना है कि ये भी है कि मैं जिस तरह से, चूँकि कैलीग्राफी जो है मज़हब से ताल्लुक़ भी रखती है. कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, बेशतर कुरान मजीद हाथ से लिखे हुए हैं. बहुत कमी के साथ देखा जाता है कोई इक्का दुक्का टाइप किया हुआ कुरान मजीद होता है. तो जाहिर बात है जब हम कुरान मजीद या कुरान की आयत या हदीस खूबसूरत, जितने भी खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे, अल्लाह पाक इतने ही खूबसूरत अंदाज में हमारा जन्नत में नाम लिखेगा. जितना हम अपने रब को खुश करेंगे उतना ही अल्लाह पाक हमें खुश करेगा. जाहिर बात है जब हम किसी महबूब के, अपने दोस्त को, अपने भाई बहन के लिए कुछ अच्छा सा तोहफ़ा देते हैं या कुछ नाम लिखते हैं या कुछ उसके लिए लिखते हैं, और हम जब अल्लाह पाक के लिए अल्लाह के नबी का नाम लिखेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे या दीगर नाम लिखेंगे, अल्लाह पाक के ख़ुद के नाम लिखेंगे, तो मेरा रब मुझसे भी खुश होगा, हम सब से खुश होगा. तो हमें चाहिए कि कैलीग्राफी को फ़रोग़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए हमें. अस्सलामु अलैकुम. I got a first class. My specialization was typography, lettering, typography and calligraphy. Before that, I was in school, backbenchers, 47% mark. In maths, 18 mark out of 150. So my teacher told me, I know you're not good in study. I said, it's okay. You know, is it possible, can you write one thought on the blackboard? It was difficult question mark for me that time. I don't know what is a thought. I don't know how to write. But I say yes, trust me. उन्होंने क्या देखा मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या हाँ बोला मुझे मालूम नहीं. 8th standard, 9th standard, 10th standard लिखता चला गया. Then I realized every day you have to write one thought with the beauty. उसके बाद जेजे में चला गया. जेजे में टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी वहाँ पे थी. सो जो स्कूल में किया वही करना था मुझे. ओनली द मीडियम इज डिफरेंट. दैट इज पेन, ब्रश, पेपर. एंड जो 6 इंच का लिखता था वो फिर 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट, 18 पॉइंट हो गया.
ऐसे करते करते 3 साल निकल गए. In the last year, I got a first class. I was first in Maharashtra in my subject. And then I got a one scholarship to research on Modi script in 15th to 18th century. And वहाँ पे हमारे गुरु R.K. जोशी, उनकी बात हो गई, उनसे मिलना हुआ. और उसके बाद उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कॉलेज में. एंड देन आई रियलाइज कि वो जो काम आज कर रहे हो और मैं जो कर रहा था उसका फ्यूचर आर.के. जोशी है. फाइनली डिसाइड किया, स्कॉलरशिप मिलेगी, बाहर हो गए हम. और करते करते जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, मैंने कहा कि स्क्रिप्ट मुझे आती है, लेकिन व्हाट अबाउट एस्थेटिक्स ऑफ द मूवी, उसकी खासियत क्या है, वो क्यों लिखाई जा रही है. और शॉर्ट हैंड ऑफ देवनागरी करके उनको बुलाया जाता था. सो वो करने के बाद जो ऑलमोस्ट 2 साल मैंने काम किया. 2 साल काम करने के बाद मैंने एक नया स्क्रिप्ट निकाला, कॉम्बिनेशन ऑफ देवनागरी एंड मोडी. महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट 25 ईयर्स. दैट टाइम दे पब्लिश वन बुक. ये बुक के सारे टाइटल्स मैंने किए थे. ऐसे करते करते समय पता चला कि पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड. बट एक छोटी सी एक मज़ा हुई थी मेरे साथ. मज़ा इन द सेंस, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम टेलीविजन एंड जैसे कि लॉट ऑफ पीपल आर interested, they should know what is the calligraphy, what is the beauty, what is the aesthetic, the same question like that. तो मैंने बोला कि चलो बात करते हैं, लोगों को क्या क्या सवाल है पूछना बहुत ज़रूरी है. I got a first call from people and he asked me what is the difference between calligraphy and sonography. ग्राफी घर में चलती है, सोनोग्राफी what about calligraphy. तो उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को लगा कि इट इज़ ए मेडिकल टर्म. ग्राफी आया. इस वक्त मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू चेंज दिस ग्राफी वाला, सोनोग्राफी वाला. देन आई ट्रैवल ऑल ओवर द महाराष्ट्र, इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी. आई ट्रैवल 3.5 months. जहाँ पे जगह मिली, जहाँ पे स्पेस मिली, जहाँ पे स्कूल मिला, जहाँ पे आर्ट कॉलेज मिला, दिस इज कैलिग्राफी, दिस इज कैलिग्राफी, दिस इज कैलिग्राफी, दिस इज कैलिग्राफी. ऐसे करते करते आज मुझे दिख रहा है कि जो 25 साल पहले मैंने जो मेहनत की थी, आज ब्यूटी देख रहा हूँ थोड़ा सा. क्योंकि और वो ब्यूटी होने के बाद हम लोगों ने कैलिफेस्ट शुरू किया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया. लोग आने लगे. लोग अभी लास्ट हुआ जो सूरत में हुआ. बट स्टिल पीपल आर लैकिंग दैट. पीपल आर थिंकिंग दैट इट इज़ अ टेक्निकल टर्म. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ब्यूटी. सो आई स्टार्ट टू वर्क विद डिफरेंट पीपल. लकीली आई वर्क विद गुलजार. सो मेरी भी एक ऐसी बात हो गई थी. गुलजार जी ने कहा कि अच्युत मेरी 4 लाइन्स है, वो आपको लिखनी है. तो मैं बोला मैं कैलिग्राफर हूँ, मैं अभी लिखता हूँ, लाइन दे दो मुझे, भेज दो. मैंने एक पेपर के ऊपर लिख दिया और मैंने भेज दिया. मुझे लगा वो शाबाशी मिलेगी. उन्होंने कहा कि देखो अच्युत बात करनी है. बोले कहो. जो 4 लाइन दिए थे ना, वो ऐसे मुझे सुनाई उसने कि मुझे पता चला कि मैंने गलतियां कहाँ पे की है. द ब्यूटी इज नॉट ओनली इन कैलिग्राफी, द वे यू आर टॉकिंग, विद द वे यू आर एक्सप्लेनिंग. एंड सेकंड टाइम जब ये बात की, तभी उन्होंने बोला कि ये मुझे चाहिए था. दिस इज द एस्थेटिक ऑफ द लैंग्वेज. भाषा समझनी चाहिए. कैलिग्राफी सिर्फ कैलिग्राफी नहीं होती है. सिर्फ सुंदर सब लिखते हैं, लेकिन उसका आत्मा जो है, वो आत्मा अगर हम आत्मा से अगर काम नहीं कर सकते ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है. और उसके बाद अभी कोरोना में मैंने उसके साथ एक काम किया. काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने बोला कि कुछ नहीं चल रहा है, कुछ करो यार, लोग मर रहे हैं. हम लोग सिर्फ बोलेंगे आज ये गया, वो जो गया, वो गया, मतलब नहीं है उसमें. तो क्या करेंगे. मैं बोल चलो, मैंने गुलजार से बात की. उनको कहा कि आपका लिटरेचर है, मैं सारे मेरे बच्चों को एक बार भेज देता हूँ. सबको कहा कि आपको जैसे गुलजार आते हैं वैसे लिखो. किसको some people are there, they don't understand the Urdu, some people don't understand Hindi also. भी मैंने कहा कि आपको करना ही पड़ेगा. आप पढ़ो, बार बार पढ़ो. बुक होने के बाद पूरा एक डमी मैंने बनाई एंड आई सेंड इट टू गुलजार. एंड मैंने कहा कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर पोएम्स, योर थॉट, एवरीथिंग इज देयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ इट इज एनी रॉन्ग थिंग लेट मी नो. देखने के बाद उन्होंने कहा, दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आया, कहा कि अच्युत कितने सारे बच्चे थे. मैंने बोला कि 19 people was there. Is it possible? Can you add one more? I say yes.
within 5 minutes, he creates one calligraphy composition, Dile Nada. That is the reaction on that entire book. And he told me that it's a total different experience for me. समझ ब्यूटी कहाँ पे होती है? सिर्फ काम करने से नहीं होती है. You try to understand the language, you try to understand the space, you try to understand the tool, ink, everything is beauty. हम लोग बाद में उसको समझने के बाद we occupy the entire how to utilize the space. अगर हम लोगों को समझ गया, because 10 साल मैंने आफ्टर 82 टू 92 तक मैं सिर्फ 10 साल प्रैक्टिस कर रहा था कैलीग्राफी की, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेटर. एंड देन आई रियलाइज वन लेटर इज वन डिजाइन, वन लेटर इज वन ब्रेथ. वो अगर आप एक बार आपको समझ में आया ना, तो फिर मेरे ख्याल से हम जब भी आप अरेबिक के स्ट्रोक्स देखते हैं तभी श्वास कितना बड़ा होता है तभी पता चलता है. ऐसा नहीं है मार दे स्ट्रोक्स हो गया. या दैट इज power is there, energy is there, but feeling is very important. Along with the feeling, along with the aesthetics, वो जब आ गए ना तो मजा आता है काम करने के लिए. हमारे जो आर.के. जोशी है गुरु ने, उन्होंने ये सिखाया नहीं, सामने देखो, ऑब्जर्वेशन करो और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. आज जो 40 साल जो या उससे भी ज़्यादा हो गए जो काम चल रहा है वो, या आई वर्क विद द डिफरेंट फ्यूजन विद डांसर्स, आई वर्क फ्यूजन विद द क्लासिकल सिंगर या म्यूजिशियंस, काफ़ी सारे लोगों को साथ काम करता हूँ कि ऑन द स्पॉट जो करना है ना, आपकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है टू अंडरस्टैंड द म्यूजिक, टू अंडरस्टैंड द डांस, टू अंडरस्टैंड द थॉट. वो अगर आप कर सके तो मेरे ख्याल से वो, मुझे जो लग रहा है ना वो मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो. क्योंकि एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आई वर्क फॉर माई सेल्फ, बट आई हैव टू कंसिडर इवन सामने वाला जो कौन किसके लिए कर रहा हूँ. मैंने नागपुर में एक कैंसर हॉस्पिटल हुआ है, 7 स्टोरेज, इट्स अ बिग बेटर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो. तो उन्होंने मुझे कहा था कि अच्युत कैंसर के लोग हैं, उसके लिए हम लोग एंट्री मंगा रहे हैं, थोड़े से पेंटिंग्स दे दो. कोई इलस्ट्रेटर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई बाकी सारे लोग हैं. सबने सबमिशन किया था. फाइनली दे टोल्ड मी दैट कि योर वर्क इज कनेक्ट इमीडिएटली विद द कैंसर पेशेंट एंड दे गॉट द रिलीफ. इतनी पावर इसमें है. सो दे रिजेक्ट ऑल द वर्क एंड दे आस्क्ड मी टू एंटायर हॉस्पिटल यू कैन वर्क विद द कैलीग्राफी एंड एक्सप्रेशन एंड इमोशंस. ये कभी होता है जब भी थॉट is not only the thought, with the expressions, with the emotions, with the space. वो आदमी जब भी टेंशन में रहता है तभी उसके पास एक जगह रहती है भगवान. इमीडिएटली ही कनेक्ट विद द भगवान. वो फॉर्म क्या चाहिए मैं दे सकता हूँ. यस 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 यस. एंड आई थिंक योर एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या योर एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कहा कि यहाँ इंडिविजुअल काम कॉपी मत करो, मीन्स यू नीड अ बेसिक टीचर, राइट. मैंने पहला एग्जीबिशन करने के बाद जब लगा डिस्प्ले किया तभी दैट टाइम माय क्लासमेट टोल्ड मी दैट वेयर इज अच्युत पल्लव, वी कांट सी द अच्युत पल्लव. देन आई रियलाइज आई स्टॉप द वर्क फॉर 6 months. आई वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. मुझे बेसिक आ रहा है, परफेक्ट हुआ है, बट वाई शुड आई फॉलो द माई गुरुज वर्क. रिस्पेक्ट इज देयर. Yeah, tomorrow I will show you the one film that is I work with Gulzar. It was जितने सारे इन बिटवीन जर्नलिज्म में जितने काम कर रहे थे वो किसके बारे में गलत लिखा या लिखा आपने तो वो उनको अच्छा लगेगा, वो आके तोड़ देते थे, मारते थे, पीटते थे, कैमरा फेंक देते थे. Nobody was ready to write truth. So एडवर्टाइजिंग क्लब ने गुलजार जी से कहा कि आप कुछ लिखो इसके ऊपर. तो उन्होंने बोला कि मैं क्या लिखूं. बात करते करते 4 लाइन निकल गई उसमें से, तू नहीं तो और कौन. एंड देन हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग्स. देन ही आस्क्ड मी, अच्युत दीज आर द 4 lines. आई से इट्स ओके, आई कैन गिव द इंप्रेशंस. एडिटर, फोटोग्राफर, उनको सबको कहा कि सी कैलीग्राफी इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, हियर इज इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इमोशन शुड गो अलॉन्ग विद द एस्थेटिक्स, देन यू विल सक्सेस. रूल सब जगह पे.
वो कहाँ से ब्रेक करना वो आपको आना चाहिए. वो ब्रेक करने के लिए खुद टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दो मेजरमेंट हाइट के एक असेंडर डिसेंडर एक साइड में होते हैं वैसे, है ना. लेकिन एक ए भी किया तो फ्लोरिक में कितना आता है, उसमें कहाँ पे है. सो दैट टाइम यू कैन सी द ब्यूटी, बैलेंस, आइसोलेशन, डोमिनेशन, रिपीटेशन, एंड फाइनली हाउ यू ऑक्यूपाई द स्पेस. हर एक स्क्रिप्ट की ना एक इंडिविजुअलिटी होती है. जैसे आज देखा हमने अरबिक की जो नज़ाकत है, वो नज़ाकत देवनागरी में नहीं है. देवनागरी की जो ऐसी ब्यूटी है, इंटरकनेक्शन जो है लेटर का, वो इसमें नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनी थॉट और एनी लेटर, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. लेकिन कॉम्पोजिशन के अभी कल हम ताज से बात कर रहे थे रात को, क्या उसूल है, हाउ यू फॉलो द रूल्स. तो वो बता रहे थे कि कितनी डिफिकल्ट लिखना है. वो बेसिक सब जगह पे वो होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो सीखते नहीं है. नहीं तो पहले दिन में कैलिग्राफी करेंगे ना तो बेसिक भूल जाएंगे. हाँ, वो लेटर का इम्प्रेशन क्या है, इमेज क्या है, वो दिमाग में एक बार बैठ गया ना, तो स्विमिंग पूल में जाने के बाद पहला लड़का को पहले दिन कोई डीप में नहीं जाता है. पहले थोड़ा इधर उधर हाथ हला के आहिस्ता आहिस्ता फिर पानी में अंदर जाता है. So everywhere the rule is same. I think you go in the dance, you go in the classical singing also, because कोई immediately प्रोग्राम चालू नहीं करता है. So I think सब जगह पे सेम है. और बाकी सब होता है वो हर आदमी अपने अपने इम्प्रेशन से, अपने अपने दिमाग से, अपने अपनी जो एक्सपीरियंस रहते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं. एक जाते जाते कभी एक्सीडेंट देखा तो मैं आवाज़ आता है, वो आवाज़ के बाद वो एक मेरा अंदर का एक स्ट्रोक जागा होता है.